Good morning and Jai Hind students. Today we are going to discuss about vertebrates. Children, in the last class we have discussed about protocardates. After finishing the invertebrates, हम लोगों ने देखा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 8 फाइलम्स हम लोगों ने देखा। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। बच्चों, हम लोगों ने हर परिवार में स्टेप वाइज ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन को देखा, दैट इज वेल नोन एज इवोल्यूशन। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्टिब्रेट्स, so before dividing vertebrates on the basis of jaws, they were divided on the basis of cranium, that is the skull. And in the last class we have seen the acraniata, which are the hemichordata, urochordata and cephalochordata. और हम लोगों ने देखा भी कि हेमिकार्डेट्स में कभी भी नोटोकार्ड पाया नहीं जाता था, इसीलिए उनको इनवर्टिब्रेट्स में इकाइनोडर्मेटा के बाद एक अलग फाइलम बनाया गया, फाइलम हेमिकार्डेटा। और हम लोगों ने बेलेनोग्लोसस या साइकोग्लोसस का एग्जांपल भी देखा बच्चों, सैलिएंट फीचर्स को भी हम लोगों ने कंसीडर किया। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इन यूरोकार्डेट्स नोटोकार्ड इज persistent in the larval tail, and in cephalocardate notocard persistent throughout their life from head to tail. That's why urocardates and cephalocardates are collectively said to be as protocardates. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर्डमानिया और एम्फिऑक्सिस को देखा भी। Now come to children, come and see here that the division of vertebrates on the basis of jaws. If jaws absent, they are said to be as agnatha, and if jaws present, they are said to be as gnathoistomata. In agnatha, we have discussed the cycloistomata. In the last class, we have seen about the cycloistomates, which just go to fresh water for their spawning and usually die while returning back. And then the tetrapods, these are the tetrapoda, and tetrapods divided basically into amphibia, reptilia, apes and mammalia, and these are the apoda without limbs species divided into two classes, chondric thighs and ostick thighs. Children, in the last class we have discussed the characteristic features of chondric thighs and ostick thighs, that chondric thighs are the cartilaginous species, they don't have air bladders and gills are open. And in ostick thighs we have seen that gills are covered and they have air bladders also, and their skeleton system is made up of bones. One more thing children, we have seen that in chondric thighs, in cartilaginous species in fact, which skeleton system is made up of cartilage, and basically cartilaginous species have the hard scale. इनका स्केल हम लोगों ने देखा था बच्चों, प्लेकोइड स्केल था, हार्ड था और डर्मल डेंटिकल्स का काम करता था, जबकि इन ऑस्टिक थाइस स्केल्स आर सॉफ्ट, which are said to be as cycloid or tenoid scales. Now come to the tetrapoda. Today we are going to discuss about tetrapoda. Tetra means four, poda means limbs. It means the animals bearing four limbs. Two four limbs, FORE, दो सामने वाले पैर, and two hind limbs, दो पीछे वाले पैर। बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया। यह भी इवोल्यूशन के बेसिस पर है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस। चिल्ड्रन, क्लास एम्फीबियंस basically consisting two words which are amphi and bia. Amphi means mix or both and bia means bio or life. एम्फी का मतलब मिला जुला या दोनों, और बायो का मतलब लाइफ। तो ऐसी लाइफ जो दोनों तरीके के हैबिटेट में सरवाइव कर सकती है, इट मींस दे कैन सरवाइव इनसाइड द वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दैट इज द एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज एम्फीबियंस। याद करिए, जब आप किंगडम प्लांटी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ किंगडम प्लांटी, एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग डायरेक्टली एम्फीबियंस in kingdom Animalia. Children, they have lungs as well as gills. That's why they can survive in both the habitat which are terrestrial and aquatic. And the most prominent example, the representative animal of this class is frog. You are seeing here in frog so many adaptation and modification you are seeing, children. So see the
structure of frog first of all. Students, please note it that tympanum first of all arised in class amphibia. Tympanum, that is the eardrum, कान के पर्दे को पहली बार यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है बच्चों। इससे पहले आपने कभी भी टिम्पैनम का जिक्र नहीं सुना। टिम्पैनम, टिम्पैनम that is the eardrum firstly arised in class amphibia, and eyelids you are seeing here, the eyelids are also firstly arised इन क्लास एम्फीबिया। तो ये इस क्लास एम्फीबिया का भी आपने एक फीचर देखा था कि दे कैन सर्वाइव इन लैंड एंड वाटर, एंड हियर यू आर सीइंग टू मोर फीचर्स दैट टिम्पैनम द ईयर ड्रम फर्स्टली अराइज्ड इन क्लास एम्फीबिया एंड द आईलिड्स फर्स्टली अराइज्ड इन क्लास एम्फीबिया, एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, एंड दिस वन इज द टेल, that is the leg portion in fact. So the forelimbs are said to be as forearms and hind limbs are said to be as hind arms, children. So you are seeing here the class amphibia, and you are seeing the representative animal frog, scientific name Rana tigrina. So children, please write it the characteristic feature of class amphibia. You are seeing here that many amphibians such as frogs undergo a metamorphosis. ध्यान दीजिएगा, ये मेटामॉर्फोसिस भी करते हैं, यानी लार्वल स्टेज से होकर गुजरती है इनकी लाइफ साइकिल, एंड देयर लार्वा इज वेरी वेल नोन एज टैडपोल लार्वा, चिल्ड्रन। तो इनका यहाँ पर फ्रॉग का जो है लार्वल स्टेज आता है, टैडपोल लार्वा बनता है, एंड दैट इज वेल नोन एज मेटामॉर्फोसिस, मीनिंग दे बिगिन लाइफ इन द वाटर एंड लिव ऑन द लैंड एज एडल्ट, and meanwhile the time they form the larval stage so called as tadpole larva, and they have scaleless skin, means soft skin, and the fact that they are cold blooded animals, children। अभी भी ये cold blooded animals हैं, means poikilothermus, फिशेस भी cold blooded और एम्फीबियंस भी cold blooded हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है एक मॉडिफिकेशन हो गया है कि फिशेस में आपने देखा था 2 चैम्बर्ड हार्ट था, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल, और यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट रहेगा, 2 आर्किल and 1 ventricle, 2 archial and 1 ventricle, here you are seeing that is 3 chambered heart। तो यहाँ पर एम्फीबियन का हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड रहेगा बच्चों, 2 archial and 1 ventricle, and they are also cold blooded animals which are said to be as poikilothermus, poikilothermus in biology, as you know that biology is the subject of terminology, तो poikilothermus का मतलब होता है cold blooded animal। Now children, you are seeing here the examples of class amphibia and characteristic of class amphibia। So first of all, see here example salamandra, salamandra, the scientific name salamandra, salamander you are seeing here, amphioma, the scientific name, and toad you are seeing here the Bufo melanosticus, the scientific name is Bufo melanosticus। Children, in today's class we have to discuss about the differences between toad and frog also, and here you are seeing the frog। तो टोड और फ्रॉग के बीच में अभी भी यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है बच्चों, बट वी शैल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टोड एंड फ्रॉग व्हिच आर ब्यूफो मेलानोस्टिकस एंड राना टिग्रिना। नाउ सी द मेन फीचर्स। एम्फीबियंस लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, वी नो वेरी वेल। बॉडी कवर्ड विद स्लाइमी एंड स्लिपरी स्किन, स्मूथ स्किन दैट इज स्लिपरी आल्सो। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मींस पोइक्लोथर्मस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, 2 forelimbs and 2 hind limbs। एक यहाँ पे एक्सेप्शन है बच्चों, इक्थियोफिश। इक्थियोफिश एक ऐसा एम्फीबियन होता है जिसके पास लेग्स नहीं होते हैं, दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन, एंड गिव बर्थ बाय लेइंग एग्स इन वाटर, इट मींस दे आर ओविपेरस इन नेचर। यहाँ एक बात और आप नोट कर लीजिएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फीमेल फ्रॉग, कपुलेशन तो होता है बच्चों, लेकिन कपुलेशन होने के बाद फीमेल फ्रॉग लेज एग and then male fertilized egg outside of the female body, that's why it is said to be as external fertilization। And here the most important phenomena criteria you are seeing that they can breathe through lungs as well as moist skin as well as gills, that's why they are amphibians। 2 pairs of legs, 2 forelimbs, 2 hind limbs, oviparous animals, वाटर में एग ले करते हैं, ऑक्सीजन को स्किन के थ्रू भी ले सकते हैं, लंग्स और गिल्स के थ्रू तो ले ही रहे थे, स्मूथ और मॉइस्ट स्किन, स्लिपरी स्किन होता है, मेनी हैव लंग्स आल्सो, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। और एग्जांपल्स यू आर सीइंग फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स। फ्रॉग राना टिग्रिना, टोड ब्यूफो मेलानोस्टिकस,
and salamander, the scientific name is salamandra. So children, here you are seeing that Linnaeus lost legs during the adaptation to burrowing life cycle. जब ये burrowing life cycle में जाते हैं तो लेग लॉस्ट हो जाता है। एक स्पेशल फीचर है यहाँ पर, वन पेयर ऑफ लंग्स भी प्रेजेंट है एम्फीबियंस के अंदर, और क्यूटिनियस रेस्पिरेशन है स्किन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स भी पाए जाते हैं जो कि यहाँ पर थ्री पेयर्स ऑफ हार्ट है, 2 आर्किल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स है। तो 2 pulmonary veins return aerated blood to heart force pumping and directly to higher blood pressure to tissue, और हायर ब्लड प्रेशर के थ्रू डिफ्यूजन एक तरीके से कर लीजिए, हायर ब्लड प्रेशर के थ्रू टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। एंड हार्ट इज डिवाइडेड into 2 atrium and 1 ventricle, that is 3 chambered heart in amphibians. And after completing the class amphibia, now we are arrived on the most dangerous class of kingdom Animalia, that is class Reptilia, reptiles including turtles, crocodiles, snakes, lizards. These are the most dangerous family children, having so many dangerous animals like snakes and lizard. So characteristics of reptilia we are seeing here that these are creeping animals. मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि creeping vertebrates are said to be as reptiles and creeping invertebrates are said to be as invertebrates. So please keep this thing in your mind children कि रेंगने वाले वह एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, they are said to be as worms, और रेंगने वाले वह एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है आर सेड टू बी एज रेप्टाइल्स। क्रीपिंग एनिमल्स बरोइंग टेरेस्ट्रियल हैं, स्केल्स पाया जाता है इनकी बॉडी के ऊपर, और यह मोल्टिंग भी करते हैं बच्चों। यह समय समय पर अपने स्केल्स को छोड़कर दूसरे स्केल्स को रिजनरेट करते हैं, जिसको गांव वगैरह में आप देखे होंगे सांप का केचुल या सांप का पोआ। तो जो सांप का केचुल छोड़ता है सांप, दैट इज बेसिकली मोल्टिंग, और वह अपने ऊपर वाले स्केल्स को लीव करके दूसरे स्केल्स को रिफॉर्म करता है बाय मींस ऑफ एक्डाइसोन एंजाइम। एक्डाइसोन एंजाइम हैज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन मेडिकल competitive exams also, and they are cold-blooded animals children you are seeing here. It means they are poikilothermous. poikilothermous होते हैं। एम्फीबियंस में स्किन आपने स्मूथ और स्लिपरी देखा था, जबकि द स्किन ऑफ रेप्टाइल्स आर ड्राई एंड रफ विदाउट एनी ग्लैंड। वहां पर स्किन में कोई भी सीबेशियस ग्लैंड या कोई भी स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाता है, और सीबेशियस ग्लैंड के एब्सेंट होने की वजह से स्किन जो है वेट नहीं बल्कि ड्राई, और स्मूथ नहीं बल्कि रफ होता है। एंड द बॉडी ऑफ रेप्टाइल्स आर डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटी होती है बच्चों। स्ट्रॉन्ग बोनी स्केलेटन होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे हैव बोनी स्केलेटन सिस्टम, वेल डेवलप्ड लंग्स, मोस्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ लेग्स, लेकिन स्नेक्स आर लिम्बलेस। लिजार्ड में और बाकी गिरगिटान में, अन्य एनिमल्स में, कैमलियन में आपको 2 पेयर्स ऑफ लेग्स दिखाई देते हैं, बट स्नेक्स आर लिम्बलेस। स्नेक्स लिम्बलेस होते हैं। यहाँ पर इवोल्यूशनरी थ्योरीज पढ़ेंगे आप अगले हायर क्लासेस में, तब वहां पर देखेंगे कि लेमार्क ने बताया कि जो है पैरों के यूज न करने की वजह से, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से पैर गायब हो गए, और जबकि डार्विन ने बताया कि पैर वाले और बिना पैर वाले दोनों ही स्नेक्स पाए जाते थे, बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ड्यू टू द क्रीपिंग हैबिटेट द लिम्ब्ड स्नेक्स वर नॉट फिट and limbless snakes were fit. That's why limbless snakes were found in the next generation. और toes with claws के साथ में पाए जाते हैं। excretory system डिजाइन होता है कंजर्व वाटर करने के लिए, ताकि वाटर बॉडी में बचा रह जाए बच्चों। इस परिवार में टर्टल्स, लिजार्ड, स्नेक्स, क्रोक्स, एलिगेटर्स आते हैं। टेट्रापोड्स हैं ये 4 पैरों वाले, एक्सेप्ट स्नेक्स। शेल्ड होते हैं, इनके ऊपर एक एमनियोट एग होता है, एक के ऊपर एक शेल पाया जाता है, दैट्स व्हाई देयर एग इज सेड टू बी एमनियोट, और एक के ऊपर एक लेदरी शेल पाया जाता है बच्चों। एंड इनहेबिट एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जहाँ पे बहुत अधिक ठंडक है, -0 में टेम्परेचर है, उसको छोड़कर ये हर जगह पर इनहेबिट करते हैं। एक्टोथर्म्स हैं इनके। रेप्टाइल्स आर आल्सो पाइक्लोथर्मस एनिमल्स, ये भी पाइक्लोथर्मस एनिमल्स हैं, और अर्थ पर 300 मिलियन ईयर्स एगो यह अराइज्ड हुए थे बच्चों। तो स्कल
जो है वन सरफेस पे होता है स्कल इनका, लंग्स के थ्रू, ध्यान दीजिएगा, स्नेक रेस्पायर ओनली थ्रू लंग्स, यहाँ पर गिल्स नहीं पाया जाता है बच्चों, एम्फीबियन से ये अलग है, यहाँ पर केवल रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। एमनियोटिक एग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड ड्राई स्नेक्स, ड्राई स्किन्स और ड्राई स्किन यू कैन से, ड्राई स्किन पाया जाता है। देयर हैव बीन 70 ऑर्डर्स ऑफ रेप्टाइल्स हैव बीन रिपोर्टेड and 4 living order of reptiles are now existing in our universe. So children, you are seeing the examples here. Lizard, lizard हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं इसको, साइंटिफिक नेम हेमीडेक्टिलस। लिजार्ड जो वॉल के ऊपर क्रॉलिंग या क्रीपिंग करते हुए नजर आता है बच्चों, क्योंकि इनके जो फिंगर्स हैं इनको डिजिट कहते हैं, और इनके डिजिट्स के अंदर क्लब्स लगे होते हैं, पैडी मॉस के कुशन लगे रहते हैं, और इस कुशन के थ्रू, इन क्लब्स के थ्रू ये जो है वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं वॉल्स की सरफेस पर, और आसानी से रेंग पाते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रे को पकड़ने के लिए जब दो लिजार्ड या दो से अधिक लिजार्ड आपस में कंपटीशन करते हैं, तो लिजार्ड दीवार पर से नीचे भी गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम खुल जाता है। तो लिजार्ड हेमीडेक्टिलस, इसके स्किन में पॉइजनस ग्लैंड पाए जाते हैं बच्चों, तो इसका स्किन पॉइजनस भी होता है। एंड नाउ यू आर सीइंग हियर द कोबरा, किंग कोबरा, नाजा, scientific name नाजा, the most dangerous species, and here you are seeing the रसेल वाइपर। ये रसेल वाइपर है बच्चों, धामिन इसको कहा जाता है। रसेल वाइपर यह जो है एयर अंदर से निकालता है, और माउथ के अंदर से पॉइजनस एयर भी निकालता है, जिसकी वजह से आदमी की मौत हो सकती है, इंसान की मौत हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजनस एनिमल्स हैं। इनके माउथ के अंदर एक पॉइजनस ग्लैंड पाया जाता है, दैट इज वेल नोन एज फैंग, और जिस वजह से जो है ये इस फैमिली को ही पॉइजनस कहा जाता है। यहाँ पर हमें यह समझना होगा बच्चों कि देयर आर 3000 स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, एंड आउट ऑफ विच ओनली 5% आर पॉइजनस। 3000 स्पीशीज जो इंडिया में स्नेक्स की पाई जाती है, उसमें से केवल 5% पॉइजनस है, यानी 150 एंड आउट ऑफ 150 पॉइजनस स्पीशीज ओनली 5% आर फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और 150 जो पॉइजनस स्नेक्स की स्पीशीज है, उसमें से केवल 5% ही लैंड में पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाता है। इससे हमें समझ में आ जाना चाहिए कि स्नेक्स बाइट्स पे अगर 100 मौतें हुई, तो उसमें से जो है लगभग 92 मौतें जो हुई वह केवल हार्ट अटैक से हुई, और जबकि 8 जो मौत हुआ वह स्नेक के वेनम से हुआ, दैट इज स्नेक पॉइजन वेल नोन एज वेनम, because you know very well that out of 150 poisonous species of snakes, only 5% are found in terrestrial habitat, and rest are found in aquatic habitat. That's why children, most of the deaths occur due to the snake bites are caused due to the heart attack, because we never know that the snake are poisonous or non-poisonous on the basis of its morphological feature. बाहर से देख के हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि स्नेक्स पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, और सांप के काटने पे जो एक डर उत्पन्न होता है, दैट कैन क्रिएट हार्ट अटैक आल्सो। सो आफ्टर कंप्लीटिंग रेप्टिलिया क्लास, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास ऑफ टेट्रापोडा सुपर क्लास, दैट इज क्लास एप्स, पक्षियों का परिवार बच्चों, दैट इज द फैमिली ऑफ बर्ड्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज इन दिस क्लास which is modified from the reptiles itself, but they have the their four wings are modified into, four limbs are modified into wings, इनके आगे वाले पैर पंखों में बदल जाते हैं। दे हैव hollow bones होता है, फ्लेक्सिबल बोन्स होता है, दे आर लाइट इन वेट, इनका वेट भी कम होता है, एंड दे हैव फेदर्स आल्सो, जिसकी वजह से ये आसानी से फ्लाइटिंग कर पाते हैं। तो फ्लाइटिंग मैकेनिज्म एप्स का एक स्पेशल फीचर है बच्चों। यहाँ पर कैरेक्टर देखिए आप, स्पिंडल शेप्ड बॉडी विथ 4 डिविजन्स, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, रेप्टाइल्स के तरीके से। 4 limbs modified for flying, 4 limbs are modified into wings, I have already told you, and epidermal covering of feather and legs scales, feathers भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ बीक, एक चोच बन जाता है आगे से, तो एक बीक का प्रेजेंट भी यहाँ पर देख रहे हैं आप। और फुल्ली ऑसिफाइड, यानी स्केलेटन इनका जो है कंप्लीटली बोनी होता है, एंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम दे आर हैविंग, एंड दे आर द फर्स्ट एनिमल्स हैविंग कंप्लीट 4 chambered heart. In reptiles also we have seen the pseudoventricles, कि ventricles के बीच में एक pseudocepta बनता था, but here in crocodile, हम लोगों ने crocodile में देखा था वो चीज, but apes are the firstly completely 4 chambered heart and first warm blooded animals,
they are not cold-blooded. In fishes, in amphibia, in reptilia, we have seen that they are cold-blooded animals. But here we are seeing that apes are warm-blooded animals. Children, they have the homeostasis property. They can regulate their body temperature also. So here we are seeing that apes have adaptation from flight. कई बार पूछ चुका है कि फ्लाइटिंग मैकेनिज्म के लिए क्या क्या एडाप्टेशन होता है. तो यू नो वेरी वेल दैट फोर limbs are modified into wings. They are light in weight, hollow bones, flexible bones, having feathers. These are the characters, and body is boat shaped to make buoyancy inside the air. These are the adaptation for flight. And they have one more adaptation, children, that is perching mechanism. They can hold the wire or straw or branches of tree, and even they can sleep also, but their claws will not be open because that is the perching mechanism, which is peculiar feature of क्लास एप्स. एंडोथर्मिक हाई मेटाबॉलिक रेट होता है. वर्टिब्रल कॉलम मॉडिफाइड होता है फ्लाइट के लिए. आप देखे हैं पीछे. बोन्स हल्के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं. न्यूमरस एयर सैक्स. बच्चों, अगर हम कोलंबा लिबिया यानी पिजन की बात करें तो पिजन के अंदर 9 एयर सैक्स पाए जाते हैं, यानी 9 लंग्स पाए जाते हैं. बीक पाया जाता है, बिल्स या बीक पाए जाते हैं. इनके अंदर एक कैरेक्टर है, जबकि दांत नहीं पाए जाते हैं. चिल्ड्रन नोट इट, दे लैक टीथ बट दे हैव बीक. दांत न पाए जाके इनके अंदर चोंच पाया जाता है. यह बर्ड्स का एक स्पेशल फीचर है. एंड दे आर 4 चैम्बर्ड हार्ट एनिमल्स, 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल्स. एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है लंग्स के थ्रू. और एमनियोटिक एग यह भी ले करते हैं. एग के ऊपर एक कैप्सूल या कवरिंग प्रोटेक्टिव चढ़ा होता है बच्चों. सो कवर्ड विथ फेदर, थिन वॉल्ड, hollow bones, we have seen here, require enormous amounts of energy, demands lots of oxygen for respiration. वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ध्यान दीजिए, पॉइक्लोथर्मस नहीं है या एंडोथर्मिक है. वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, हाई मेटाबॉलिज्म एंड हाई मेटाबॉलिक रेट, and have no teeth because they have beak or bills. That's why they have no teeth. And the last one, that is they are oviparous animals. They lay egg, children. And here, my dear kids, we are seeing the examples. That is parrot, Psittacula. Scientific name is Psittacula. P से start होता है, P silent है children. Psittacula. Psittacula. And here we are seeing the pigeon. Scientific name is Columba libia. The representative animals of class apes, that is Columba libia. And one more example we are seeing here, that is crow. Scientific name Curvas. So children, these are the examples of class apes. And now we have arrived on the last class of tetrapoda, that is class Mammalia. Children, mammals. Mammals, they are having the mammary glands or mammary glands. Mother feed their children child with milk. माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं. That is the first character of class Mammalia. And they have hairs on their body surface. So please write the characteristic of mammals. The presence of hairs or furs. स्वेट ग्लैंड का प्रेजेंट होना. अभी तक आप देखे थे स्किन में कोई ग्लैंड नहीं था, यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है. मेमोरी ग्लैंड्स हैं जो स्पेशलाइज्ड है टू प्रोड्यूस मिल्क. मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स या मेमोरी ग्लैंड्स पाया जाता है. और 3 मिडिल ईयर्स बोन्स. ईयर के अंदर मिडिल ईयर होता है और मिडिल ईयर में 3 बोन्स होते हैं बच्चों, हैमर, एनविल और स्टीरअप. तो 3 बोन्स यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको ईयर ऑस्किल्स भी कहा जाता है. और ब्रेन के अंदर एक नियोकॉर्टेक्स रीजन होता है जो कि सीइंग और हियरिंग, देखने और सुनने के लिए जिम्मेदार होता है. स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अलग अलग तरीके के टीथ यहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं. And the most important character, they are also 4 chambered heart animals, that is 2 archil and 2 ventricle. So here you are seeing 4 chambered heart. Here या फर का प्रेजेंट होना. डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में लंग्स के नीचे आपने देखा डायफ्राम भी होता है. एमनियोटिक एग है क्योंकि मेमेलियंस ओविपेरस भी हो सकते हैं. इनकी एक कैटेगरी होती है प्रोटोथेरिया जो कि एग लेइंग एनिमल्स होते हैं बच्चों. मेमोरी ग्लैंड्स नर्सिंग यंग्स होते हैं जो कि मिल्क को सिक्रेट करते हैं यंग वंस के डेवलपमेंट के लिए और नेटल केयर करते हैं. मोस्ट ऑफ द पेरेंटल केयर हैव बीन सीन इन क्लास मेमेलिया एंड दे हैव लर्निंग एंड रीजनिंग लेवल ऑफ बिहेवियर. प्लानिंग करने की क्षमता होती है, रीजनिंग करने की क्षमता होती है. मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना
endothermic होना, that is not cyclothermos. They are homeothermal animals. They can regulate their body temperature, and they have hairs on body surface and well developed brain, and they are four chambered heart animals. And well developed brain means they have the capacity to plan also. And children, class Mammalia is further divided into three subclasses, which are the Prototheria, Eutheria, Metatheria. Basically, Prototheria को Theria से अलग कर दिया गया क्योंकि Prototheria are oviparous animals. They lay the eggs, the protected eggs, in fact. And examples are Echidna and Platypus, which are the Prototherians. They have mammillary glands. They feed their offsprings with milk, but they lay eggs. That's why they are Prototherians. And the animals which directly give birth to young ones are said to be as Theria. And Therians are divided into Eutheria and Metatheria. Children, the Metatherians are marsupials. They are marsupials. They have an external pouch attached with their abdomen. पेट से जुड़ा हुआ एक बाहरी पाउच होता है. आपने डिस्कवरी पे कंगारू के अंदर ऐसा देखा होगा. बिकॉज कंगारू आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटाथेरियंस. साइंटिफिक नेम इज मैक्रोपस. कंगारू का साइंटिफिक नेम मैक्रोपस होता है बच्चों. मेटाथेरियंस के एग्जाम्पल है. दे जस्ट हैव मेमोलरी ग्लैंड्स, give the birth to young ones, but the young ones is immature, and they put their young ones inside their external pouch attached with the abdomen, that is well known as marsupia, and that's why they are said to be as marsupials. और मार्सुपिया में रखने के बाद बच्चों वे पेरेंटल केयर करते हैं, और जब आप स्प्रिंग्स फुल्ली डेवलप हो जाते हैं प्रे को पकड़ने के लिए और अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस करने के लिए, देन दे कम्स आउट. आपने कंगारू के केस में ऐसा देखा भी होगा. एंड द मोस्ट डेवलप्ड मैमेलियंस आर यूथेरियंस. यू मींस डेवलप्ड एंड थेरियंस मींस द यंग वंस लेइंग एनिमल्स, मींस यंग वंस को डायरेक्ट जो जन्म देने वाले एनिमल्स हैं. तो यूथेरियंस, मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स आर सेड टू बी एज यूथेरियंस, डेवलप्ड मैमल्स. They have mammillary glands, and they just give the birth to young ones directly without any egg formation or without any marsupia formation. And young ones are fully matured, fully developed to prevent themselves from the predator as well as to capture the prey also, that is the offense and defense. That's why eutherians are considered as the most developed. So I have given here the examples. Here Platypus and Echidna are the example of Prototheria, children. Metatheria, kangaroo, that is the scientific name Macropus. And eutherians, rat, ratus, tiger, Panthera tigris, lion, Panthera leo, elephant, that is Elephantus, bat, that is Pteropus, and finally the most developed and most dangerous animal of this universe, that is man, Homo sapiens. मैन को सबसे अधिक डेंजरस इसीलिए समझा जाता है बच्चों, बिकॉज मैन डिस्ट्रॉय द नेचर मैक्सिममली एंड मैन हैव द कैपेसिटी टू प्लान. दैट्स व्हाई मैन्स आर कंसीडर्ड एज मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट डेंजरस animal in this universe. So children, in this way we have discussed the different classes of tetrapoda, which are fishes, amphibians, reptiles, mammals, birds. And now see the main characteristic feature of each and every classes of tetrapoda. सुपर क्लास टेट्रापोडा. नंबर 1 इज फिशेज. देखिए यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट थे. कॉन्ट्रिक थाइस में हम लोगों ने देखा था हार्ड स्केल्स थे बच्चों, प्लेकोइड स्केल, जबकि आस्टिक थाइस में सॉफ्ट स्केल, दैट इज साइक्लोइड या टिनवाइड स्केल. लिव इन वाटर, एक्वेटिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोइक्लोथर्मस होते हैं, एग्स को ले करते हैं और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं. हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रिक थाइस में गिल्स आर विदाउट अपर और आस्टिक थाइस में गिल्स आर विद अपर. सेकेंड क्लास इज एम्फीबिया, found in both the habitat which are aquatic and land, terrestrial, and smooth skin, live in water and land, cold blooded they are also, and laying eggs. Next class was reptiles, and we have seen इनके ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, अंडे लेग करते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और लंग्स यहाँ पे भी. हार्ट के अगर रेस्पेक्ट में इवोल्यूशन को देखें तो फिशेज आर 2 chambered heart, amphibians are basically 3 chambered heart, 2 article, 1 ventricle. Reptiles are also the animals of 3 chambered heart except crocodile. Crocodile are 4 chambered heart animals. They have 2 articles and 2 ventricles. The false septum is arranged between 2 ventricles. And the fourth class is birds, apes. In fact, they have the feather,
warm-blooded animals, first warm-blooded animals, they lay eggs, they have lungs, and they show the perching mechanism and flighting mechanism. Their body is light in weight. They have hollow and flexible bones and too many air sacs. And the last but most developed class of the tetrapoda, superclass tetrapoda, that is mammalia. Class mammalia, mother feeds their offspring with milk. माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं. They have mammary glands, that is the main characteristic feature of class mammalia. Body surface is covered by hairs. Body surface hair से covered रहता है. और warm blooded, they are warm blooded, completely warm blooded animals, homeothermal animals. They can regulate their body temperature. So my dear kids, in this way we have finished the superclass tetrapoda by including all the classes which are fishes, amphibia, reptilia and mammalia. So we have discussed the salient features of all the classes of tetrapods as well as seen the appropriate examples also. So children, make the ray diagram of classification for division invertebrate, for division vertebrate. Make a chart for the criteria for the classification of kingdom Animalia. Make the chart for canal system, water vascular system, and so many other system which you have seen during this chapter. And make the chart for the differences between chondric thighs and ostrich thighs, which are the cartilaginous and bony fishes. So in the next class, children, we shall start the next chapter, that is morphology of flowering plants. So prepare till kingdom Animalia. Thank you very much, my dear kids.